जब भी कोई कंपनी का इंटरव्यू होता है तो एक्यू उसमें 1 वीक पहले से बच्चों को तैयारी कराना चालू कर देता है, जो भी हमें सिलेक्ट होते हैं उनके इंटरव्यू प्रोसेस में। तो एक्यू जो हमें पैटर्न देता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसी में से पूछ लेते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था ज्ञान में, जो हमने पहले पढ़े थे। तो उसमें से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ चुके थे, तो उसमें से ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन वही पे आ चुके, उसकी वजह से मेरे इसमें हो पाया है। एक्यू के पास भी जो एचआर मेंटरशिप होता है उसमें मैं उससे ऑलमोस्ट 5 से 6 बार दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश में पहले वीक था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एचआर मॉक इंटरव्यूज आई हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड प्रिपेयर्ड मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन दैट एक्यू प्रोवाइड and that are commonly asked in the HR interview question. If you want to join Acquio, yeah, it's a good platform, you should. और उसके बाद ये जो करिकुलम स्टार्ट होता है पूरा स्क्रैच से स्टार्ट होता है, तो आपको प्लेसमेंट की टेंशन नहीं लेना है 6 महीने तक। जस्ट कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन ओनली स्टडी। बस 6 महीने तक पक्की हमें स्टडीज करना है। 6 महीने तक कोई जॉब के लिए सोचना नहीं है। After 6 months, you will definitely get placed through the Acquio job. And just I would like to say, just be consistent. And if you join Acquio job, जो उनका मॉक सेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उससे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंपनी के यानी इंटरव्यू कोडिंग राउंड सब उससे निकल जाते हैं। तो मैंने भी वही सब फॉलो किया था, और बट मैं कंसिस्टेंट था। मैंने थोड़ा बस इनमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा हार्ड वर्क लगता है, लेकिन ये हो जाता है अगर आप अपने आप में भरोसा रखेंगे तो। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good. We are back with a new video. This video is going to be really special for all those people who have done their BTech from a non-CSIT background, and even if you are a working professional looking to switch into coding, you can find it extremely helpful. So watch this video till the end, and before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press the bell icon so that you guys are notified on all our upcoming videos. So for this session, we have Aman with us. Aman completed his engineering in 2022 as an electrical engineer from a tier 3 college in Nagpur. He did not get any job from his college. So right after his graduation, he joined Acquio job in September 2022 and now finally placed at Guyan Solution as an SDE. He has also joined the company. He's working there now. So in this session, we will be discussing how his journey has been so far with Acquio job and what all things he learned about coding while his preparation for this job, and what all hurdles did he face, and his interview experience at Guyan as well. And he will also be sharing few tips and strategies that you guys can also follow if you're just starting at coding, and what you can apply in your life so that you have a smoother ride ahead. So do make sure that you watch this video till the end. So without further ado, let's jump into the session. So Aman, first of all, very congratulations for finally getting placed at Guyan as an SDE. Can you tell us a little bit about yourself? Thank you, Shivani, for giving me that opportunity. As you know, my name myself Aman Gaur, and I am from Nagpur, Maharashtra. I have completed my bachelor's in electronics and communication, and after that I want to switch my career in IT industry. So that's why I am searching a best course which providing the good knowledge and good placement opportunity. So I found that the Acquio job is the best platform to learn full stack web development, and it is also cheap. And they having also top-notch mentor. They are working on top-notch MNCs like Amazon, Walmart, like a Myntra, and I would like to say that it's all like a practicing DSA continuously. अगर आप DSA प्रैक्टिस करेंगे इनके साथ साथ ही, जैसे अपना कोर्स कैरिकुलम जैसा बना हुआ है, जो एक्टिव कोर्स करिकुलम जो बना हुआ है वो ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यू डेफिनेटली गॉट प्लेस इन ओनली इन 6 months. As I follow, my batch manager is Ronak. They are always motivating me. They have a proper plan of what you have to do, what effort you have to do, and they also giving their effort to taking back to the students. They every day they sending some DSA problem, and you have to solve it. Otherwise, if you do not solve, then it's your loss. But I solve it, and now I got placed at Gyan Solution as a software developer at a 5+ LPA.
Great. That is great, Aman. Okay, so you did your graduation in electrical branch, right? Which is completely different from coding. Even though you guys do have one or two subjects related to coding, but that was not really your specialization, right? So आप बता सकते हो like क्या reason था जिसकी वजह से आपने coding करने का सोचा? किस वजह से आपको इसमें इंटरेस्ट आया? In my second year, when I'm studying like OOPS concept, so where I developed my interest in learning coding, and I want to know that how the machine and the human being interact with each other. So after that, मैंने वहाँ से कोडिंग जल्दी अपनी स्टार्ट किया, and थोड़ी छोटी लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ एंड फिर उसके बाद मैं एक्यू ज्वाइन किया. फर्स्ट मंथ मैं जब एक्यू ज्वाइन किया था तो प्री कोर्स होता है एक्यू में एग्जीक्यूटिव कोर्सेज लेने के लिए, तो मैं उसमें 3 बार रिजेक्ट हुआ था उसके इंटरव्यू. पर मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट में क्लियर हुआ, सेकंड टाइम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, फिर सेकंड टाइम टेस्ट में क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ. पर आई डिडंट लॉस्ट माय होप. अब बोलते हैं ना कि आगे बेहतर होगा, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. So I do practice well, and after that I cleared that interview and I got the admission in Acquio job. And after that, yeah, I am placed at GYAN. ओके, सो बेसिकली एक्यो जॉब को आपने अपने आप ही डिस्कवर किया था. आप रिसर्च कर रहे थे और आपको एक्यो जॉब का दिखा, और आपने देखा कि काफ़ी अच्छे मेंटर्स हैं टॉप आईटी इंडस्ट्री के, और कोर्स काफ़ी अच्छा है, करिकुलम अच्छा है. दैट इज व्हाई यू थॉट ऑफ गोइंग विद अस, करेक्ट? हाँ. और आपने 3 बार प्री कोर्स निकालने की कोशिश की थी. हाँ, मैं 3 बार निकालने की कोशिश किए थे, तो मैं उसमें 2 बार रिजेक्ट हो गया था. थर्ड टाइम आई एम सिलेक्टेड. फाइनली, दैट इज ग्रेट. ठीक है, तो आप अपने आप ही प्रिपेयर करते थे प्री कोर्स के लिए भी? हाँ मैम, मैं अपने आप ही प्रिपेयर, और प्री कोर्स में भी कैसा, वो भी भाव्य सर एंड तुषार, दिस टू मेंटर आर एक्सट्रीमली गुड. हाँ, दे टॉट मी. Yeah, and I personally talked with him also, and they told that do practice, हो जाएगा. And sometimes it get demotivated, but और अगर आप demotivate भी होते हो तो आप अपनी प्रैक्टिस ना छोड़ो. अगर आप प्रैक्टिस छोड़ोगे तो डेफिनेटली किसी का तो लॉस होगा, वो आपका ही लॉस होगा. तो प्रैक्टिस करते रहे और डेफिनेटली आपको जॉब मिलेंगे, क्योंकि एक्टिव के पास बहुत सारी कंपनी, एटलीस्ट इन वन डे दे आर ऑलमोस्ट प्लेस 20 people and every day, as I know. ग्रेट. सो अमन, आपने हमें लास्ट ईयर सितंबर में ही ज्वाइन किया था, राइट? और उसमें अभी 8 महीने बाद आपकी फाइनली जॉब लगी है. सो इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर यू, राइट? सो आप बता सकते हो लाइक व्हाट वाज द शेड्यूल दैट यू यूज्ड टू फॉलो? क्या आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, क्या चीजें करते थे जिसकी वजह से आप फाइनली इस कंपनी में प्लेस हो पाए, और कितनी कंपनीज में इसके पहले आप बैठे हो? तो जो एक्टिव का जो करिकुलम रहता है वो रात में 7 बजे से चालू होता है, 7 से 7 to 11. तो इन फर्स्ट 4 months they taught DSA from building scratch. It's like very basic, starting from data type and they goes up to the higher level. So I am started that learning that 3 घंटा जो क्लास में हम पढ़ते थे. उसके बाद जो, और हमेशा ये याद रखना है कि जब भी डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करें और जब भी कोई भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें अपने पीपल्स का यानी ग्रुप बना लेना चाहिए. yes. तो वो लर्निंग में आसानी होती है. तो हम कैसा करते थे कि व्हाट आई फॉलो, 7 to 11 क्लास करें, फिर 1 घंटा रेस्ट डिनर के बाद. उसके बाद हम रात में बैठते थे, मी एंड माय फ्रेंड, जब तक यानी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे हम सोते नहीं थे रात में. तो हम How many friends did you have like this? Like कितने लोग आप लोग साथ में पढ़ते थे ऐसे? हम 4 लोग साथ में पढ़ते थे रात में. अच्छा, so you guys were living together as well? No, they are from other different state. We are meeting online. एक साथ इकट्ठे होते थे और पढ़ाई करते थे? हाँ, ऑनलाइन रात में एक साथ इकट्ठे होते थे और फिर पढ़ाई करते थे. तो उससे उसी का नतीजा है कि हमें आज यानी 8 month बाद जॉब लग चुकी है एक्टिव से. ग्रेट. ठीक है. सो अमन, लाइक यू मेंशन कि आपने डीएसए बेसिक लेवल से पढ़ा, फिर आपने एडवांस भी पढ़ा, तो आपने डीएसए वाला ट्रैक ही फॉलो किया था क्या, जहाँ पे आपने एडवांस डीएसए और बेसिकली बैकएंड वाला ट्रैक फॉलो करके किया था? हाँ, my interest is
इन स्टार्टिंग माय इंटरेस्ट इन बैकएंड ओनली। तो अच्छा। हाँ, तो जब भी अगर बैकएंड हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें डीएसए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% कंपनी आस्किंग डीएसए क्वेश्चन इन देयर इंटरव्यू ऑलमोस्ट, और इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। पर एक्टिव जो हमें प्रोवाइड करता है वो आई थिंक इट्स द बेस्ट पार्ट। एंड हाँ, वो बेस्ट पार्ट है। और उसके बाद डीएसए करने के बाद हमें स्प्रिंग बूट में एंट्री मिलती है। स्प्रिंग बूट यहाँ से और यानी फर्स्ट सेकेंड लेवल ऑफ बैकएंड चालू होता है। हाँ, तो ओके, स्प्रिंग बूट, हाँ, ठीक है अमन। सो बेसिकली आपने डीएसए पूरा एडवांस में पढ़ा है और उसके बाद आपने बैकएंड वाला ट्रैक चूज किया था। बैकएंड वाला लेक्चर। ठीक है, तो अब मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, जैसे बच्चों को ऑप्शन मिलता है या तो आप डीएसए वाला ट्रैक ले लो या तो आप मर्न वाला ट्रैक ले लो, जहाँ पे आपको फ्रंट एंड डीप में पढ़ाएंगे और यहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर्स थोड़ा डीप में पढ़ाते हैं। एंड यू चोज दिस वन, जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है फ्रंट एंड वाले से, है ना। और काफी बच्चे सोचते हैं कि इसको पढ़े बिना ही मतलब जॉब लग जाए या फिर फ्रंट एंड कर लेंगे, बट यू चोज दिस ट्रैक। तो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू कि आप मतलब डीएसए पढ़ना एडवांस लेवल तक भी, या फिर आपके लिए इजी था और जर्नी काफी स्मूथ हो रही थी इसलिए आप डीएसए एडवांस में पढ़ते चले गए? नो, डीएसए पढ़ना उतना इजी भी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो इट गोज ऑन टफर 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 एंड यू नो डीएसए व्हाट इज। सो आई फॉलो दिस रूल, दिस path because I like DSA, I like the challenges that, और इससे हम हमारा यानी थिंकिंग पावर भी बढ़ेगा, यानी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगा, रीजनिंग आईक्यू बढ़ेगा। तो उसके कारण फ्रंट एंड थोड़ा इजी पार्ट हो जाता है। तो मैंने बैक एंड इसलिए चूज किया कि बैक एंड में एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड, बैक एंड हैज मोर कंपनीज, सो आई चोज दैट बैक एंड। Okay, so there were two things basically. एक तो आपको मजा भी आ रहा था, even though it was difficult, but then your problem solving ability was improving, and then second, the opportunities are here more, right? I mean, back end में opportunities ज़्यादा है, so you wanted to be on the safe side, इसलिए आपने DSA वाला track choose किया। ठीक है, great अमन। So next question would be, if you see our Rakhyo Job portal, there are a lot of things that you can make use of, right? आप सॉफ्ट स्किल्स भी improve कर सकते हो, आप डाउट सेशंस भी ले सकते हो, आप चैट में भी पूछ सकते हो, आप जिम सेक्शन में जाके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। सो व्हाट वाज दैट वन स्पेसिफिक थिंग फॉर यू दैट यू वर यूजिंग कंसिस्टेंटली थ्रू आउट दीज 8 मंथ्स, जिसने आपकी काफी हेल्प भी करी है मतलब प्लेसमेंट में? व्हाइल सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, मैं एक्टिव पोर्टल का एक चीज बहुत पसंद किया था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व करते हैं, दे बम्प अप, दे यानी फटाके जैसे फूटता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट। और like a Snapchat, they are also having the streak, maintaining streak. If you solve one question at least a day, so it will maintain that streak. So it goes on, and it's not a streak like a Snapchat. ये हमारी मेहनत की यानी streak रहती है कि हमें जो मेहनत की उसकी streak मिलती है। और एक्टिव का जो 1-on-1 मेंटर सेशन भी होते हैं, इसमें मेंटर सेशन, डाउट तो बहुत आते थे, क्योंकि सॉल्विंग प्रॉब्लम करना यानी हमेशा सॉल्व नहीं हो पाता था। कभी कभी एक प्रॉब्लम को हम एक 2 दिन तक लेके चले जाते थे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ डाउट सॉल्विंग सेशन, तो उससे हमारा सॉल्व हो जाता था। और एक्टिव का एक चीज और अच्छा चीज है जो वो मॉक प्रोवाइड करता है। अगर आप उसके 5 मंथ के मॉक अगर क्लियर कर देते हो, तो इट्स माय गारंटी कि आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। ग्रेट, ठीक है। तो आई थिंक the whole platform that it is so gamified, it gives you that celebration thing when you are doing questions, you're maintaining a streak. That is something which is quite working as a motivation for a lot of students and also for you. Great. So Aman, before getting placed in Kayan, आप कितनी कंपनीज में बैठे थे, कितने कंपनीज के इंटरव्यूज दिए थे आपने? I'm truly I said I am almost rejected from a 10 company. Okay. But yeah. Both most of them active job and off campus also, but मैंने अपना मोटिवेशन लूज नहीं होने दिया, एंड माय वाइस मैनेजर ऑलवेज कॉल मी, अमन कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। मैं उनसे हर चीज शेयर करता था, बोले कोई ना, हो जाएगा, तो उससे मोटिवेट मिलता था। और वो मोटिवेशन के कारण जब हम ज्ञान की इंटरव्यू में भी बैठे, तो हाँ, उन्होंने भी यानी मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन किए, लॉजिकली क्वेश्चन किए, बस फाइनली आई गॉट प्लेस। लेकिन हमें हमारी जर्नी में मेहनत करते रहना चाहिए। वो एक पल के लिए जब हमारे मम्मी और पापा के चेहरे पे जो खुशी मिलती है, वो बहुत अच्छा लगता है।
ग्रेट, ग्रेट। ठीक है। सो अमन, जैसे आपने बोला कि आपने 10 कंपनी के 10 कंपनियों के इंटरव्यू प्रोसेसेस में आप बैठे थे और आप नहीं सेलेक्ट हो पाए थे, राइट? एंड देन फाइनली आप गायन में प्लेस हो गए। तो ये जो पूरी जर्नी थी, लाइक 10 कंपनी से रिजेक्शन मिलने के बाद भी कंटिन्यूसली प्रिपेयर करना और फिर फाइनली किसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाना, सो आपके हिसाब से वो क्या एक चीज है जिसकी वजह से ये रहता है? मतलब व्हाट वाज दैट वन थिंग एंड व्हाट वाज द रीजन जिसकी वजह से आपने ये होप लूज नहीं करी और आप पढ़ते गए और आपका फिर फाइनली प्लेसमेंट हुआ? मैम, जब मैं पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था, मैं पहला राउंड क्लियर कर चुका था टेक्निकल, एंड सेकंड राउंड पे उन्होंने डेटाबेस वगैरह क्रिएशन एंड वगैरह इम्प्लीमेंटेशन वगैरह था, तो मैं ऑलमोस्ट हो ही गया था, लेकिन थोड़े कुछ पॉइंट के कारण मैं उधर से रिजेक्ट हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन वहाँ से भी कुछ सीखना चाहिए ना, हमें हमारी गलती से, तो मैं हमारा जो वीक पॉइंट है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। फिर सेकंड वाले में थोड़ा एडवांस डीएसए हो गया था, तो एडवांस डीएसए मेरा उतना हाथ नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने एडवांस डीएसए चालू किया, तो वो भी मेरा पकड़ में आ गया। तो ऐसे ही करते करते कंपनियों में धीरे धीरे करके उससे सीखते रहे, लेकिन फाइनली एक कंपनी आई और उसमें हमने प्लेस हो ही गए। ग्रेट, ग्रेट, दैट वाज ग्रेट। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ एक जॉब चाहिए। अगर हम सोचेंगे यार जगह नहीं है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उसकी वजह से आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है। तो सेल्फ मोटिवेट रहे, हमें सिर्फ एक जगह चाहिए, जो कि 100-10 में सिर्फ एक ही जगह चाहिए, फॉर दैट वन प्लेस। Yeah, that is a great mindset to have. Just be consistent with your preparation, keep giving interviews, don't lose hope, and you just need one seat to crack it, right? And definitely you will one day. Great. ठीक है अमन, cool. So that was about your experience at Accio Job. Now let's talk a little bit about your interview experience at Gayan, right? So just tell us a little bit about your preparation strategy and the roadmap that you followed for Gayan and the kind of questions that they asked in the interview. किस तरीके के राउंड्स थे और किस तरीके के कोडिंग क्वेश्चंस पूछे, और एचआर राउंड में हाउ वाज इट फॉर यू? जब भी कोई कंपनी का इंटरव्यू होता है, तो एक्यो उसमें 1 वीक पहले से बच्चों को तैयारी कराना चालू कर देता है, जो भी उनमें सिलेक्ट होते हैं उनके इंटरव्यू प्रोसेस में। तो एक्यो जो हमें पैटर्न देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसी में से पूछ लेते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था ज्ञान में, जो हमने पहले पढ़े थे, तो उसमें से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ चुके थे, तो उसमें से ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन वही पे आ चुके थे। तो ग्रेट। हाँ, तो उसकी वजह से ही, और उसकी वजह से मैंने इसमें हो पाया है। और इन एचआर राउंड या एक्यो के पास भी जो एचआर मेंटरशिप होता है, उसमें मैं उससे ऑलमोस्ट 5 से 6 बार किया था, क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश में पहले वीक था। तो just because of that HR mock interviews, I have prepared well and prepared most standard question that Accio provide, and that are commonly asked in the HR interview question. So I followed that. So that's why I am. Okay. So what you are saying is that whatever the placement assistance Accio Job provided, आपने बस वही फॉलो करा है, और उसके थ्रू आपकी प्लेसमेंट हो गई थी, है ना? मतलब क्वेश्चंस भी मोस्टली कवर्ड ही थे करिकुलम में, एंड इवन द HR preparation that you get from Accio Job, वो भी similarly आपको it helped you to become better in English and communicating. Great. ठीक है Aman. So apart from this, can you tell us a little bit about the whole process, like कि first round में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, and do they consider projects and all? Like did you make any projects? इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली उस कंसेप्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें हमारा कैसा कंपनी में जब आते हैं तो हमें प्रोजेक्ट ही करना पड़ता है। तो कंपनी में जो लॉजिकली रहता है वो उप्स कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा रहता है। उप्स हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चन स्प्रिंग बूट और उप्स के ऊपर ही पूछे गए थे। और हाँ, समथिंग अबाउट डीएसए क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट राउंड में हुआ था, उसके बाद एचआर राउंड हुआ था। एचआर राउंड में भी बस वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, हाउ यू, आप 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखोगे, ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद एक और राउंड हुआ था पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, तो हम उसमें भी सिलेक्ट हो गए थे वो। हाँ, तो ये सब तैयारी खुद एक्यो जॉब करा देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली तीनों राउंड्स की प्रिपरेशन आपकी काफी सही से हो रखी थी, क्योंकि यू वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद ऑल ऑफ दिस इन एक्यो जॉब। ग्रेट। ठीक है अमन, ठीक है। सो आई थिंक दैट वाज अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब आई जस्ट वुड लाइक टू आस्क
what tips you would like to give someone जिसने मान लो ग्रेजुएशन CSIT से नहीं करी है, कभी कोडिंग छुई भी नहीं है, एंड ही इज अ फ्रेशर और वो स्टार्ट कर रहा है अपनी कोडिंग जर्नी पे. एनीथिंग दैट यू वुड लाइक फॉर हिम टू नो सो दैट हिज जर्नी इज अ लिटिल बिट smoother than yours was. What I would like to say, if you want to join Acquio, yeah, it's a good platform. You should. और उसके बाद ये जो करिकुलम स्टार्ट होता है पूरे स्क्रैच से स्टार्ट होता है, तो आपको प्लेसमेंट की टेंशन नहीं लेना है 6 महीने तक. जस्ट कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन ओनली स्टडी. बस 6 महीने तक पक्की हमें स्टडीज करना है. 6 महीने तक कोई जॉब के लिए सोचना नहीं है. After 6 months, you will definitely get placed through the Acquio job. And just I would like to say, just be consistent. And if you join Acquio job, जो उनका मॉक सेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उससे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंपनी के यानी इंटरव्यू, कोडिंग राउंड सब उससे निकल जाते हैं. तो मैंने भी वही सब फॉलो किया था. और बट मैं कंसिस्टेंट था. मैंने बस इनमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा हार्ड वर्क लगता है, लेकिन ये हो जाता है अगर आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे. Great. That is a great piece of advice, Aman. You have already joined in Gayan, right? So when you got this news, what was your parents' reaction? How did they react to it? हम ये सब अपने पेरेंट्स के लिए तो करते हैं ना, जो बस वो एक स्माइल देखने के लिए मैं इतना तरस गया था कि कब होगा. तो फाइनली वो हो गया. तो उनका रिएक्शन सडनली ऐसा वाव था, यानी कैसा हो गया उनमें. और वो सडनली एकदम से, हमें पता भी नहीं था, तो ऑफर लेटर सडनली आ गया था. अच्छा. Great. That is amazing. ठीक है अमन, I think one last question that I would like to ask would be, you have already joined the company. It's been a month for you in that company. Tell us a little bit about it. How is the experience like? Are you liking the work? How is the office culture and all? In IT सेक्टर में ऐसा रहता है, यानी सब फ्रेंडली नेचर के होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है. हमें सिर्फ यही कैबिन में काम करना है, ऐसा नहीं. हमें जो प्लेस अच्छी लगती है वहाँ जाओ, वहाँ जाके बैठो, और लाइक सोफा कहीं पे भी. मैं यहाँ जो हमारे सीनियर्स रहते हैं, जो भी हमने पढ़े वो यहाँ पे उनके साथ डिस्कस करते हैं. वो हमारा नॉलेज थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली इम्प्रूव होता है. तो हम ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने की इच्छा होगी उसमें. और जो हमारे मेंटर्स रहेंगे यहाँ पे भी, जो हमारे सीनियर, वो हमें अच्छी तरह से गाइड करते हैं. और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ज्ञान में तो बहुत अच्छा रहा है. ठीक है, cool Aman. So I think great that you have joined the company already and that you are liking it so much. So now that you have joined it, you have been a part of Acquio job for the last 1 year now. So do you think you will be continuing studying with us? You'll be doing more questions in the future, or are you trying to give yourself some break and focus on the work right now? No ma'am, मुझे हमेशा मेरे कंफर्ट जोन के बाहर रहना थोड़ा अच्छा लगता है. तो हम अभी भी DSA सॉल्व कर ही रहे हैं, 1 and 2 क्वेश्चन एवरी डे. और उसके बाद हमने पूरा बैक एंड कंप्लीट कर लिया था. तो कुछ मॉड्यूल अभी फ्रंट एंड के रह चुके हैं, तो मैं अभी वो भी स्टार्ट किया है. तो ऐसा नहीं कि अगर आपकी प्लेसमेंट हो गई तो Acquio जॉब आपको प्लेसमेंट एक्सेस नहीं देगा, वो हमें देगा. हमें जितना भी हमारे फ्रंट एंड के मॉड्यूल बचे हम वो कंप्लीट करके हम वहाँ से जाते हैं. So by completing the front end modules, you're trying to become a full stack developer now instead of just the back end one. Great. That is great. That was an awesome story, Aman. I'm sure people watching this will definitely find inspiration from you and understand how much hard work it requires to actually crack a good software development job. Thank you for your time, Aman. That is it for today's video, guys. I hope you all liked it with Aman. Please like and share the video, and don't forget to comment down below your queries that you would want us to ask our students so that we can cover them in our next video. And if you guys are also excited about learning coding, just go to our website and register for our aptitude test. This test will help you discover which course is best for you. Either it will be MERN-Stack or Java full stack. You just have to go and take the test. Both courses have amazing instructors from top IT companies and access to one-on-one sessions with exceptional coders to mentor you for your next coding job. So don't miss out on this incredible opportunity. Simply click on the link provided in the description below to learn more and register. And if you guys are new to this channel, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you guys are updated about all our upcoming videos. Thank you so much.